हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी, और उसमें भी हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, that comprises three chapters. Chapter 4, Principle of Inheritance and Variation, Molecular Basis of Inheritance, that is chapter 5, and chapter 6 is Evolution, that is having the weightage around 18 to 20 marks in board. And that is very very important because sure question of 5 marks will come. आता ही आना है तीनों में से किसी भी चैप्टर से या दो से, but that is confirm, and that is a very logical chapter of board exam. So let's start this unit. Let's have thus what that unit comprises. Mendel, महान साइंटिस्ट, लेकिन ये अभागा भी रहा। ये व्यक्ति अपने जीते जी अपने काम की सराहना, एप्रिसिएशन नहीं सुन पाया, लेकिन हिज वर्क वाज एग्जेम्पलरी, जिसे हम ना नहीं कह सकते। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलोड हिम gave us an idea of inheritance pattern. However, the nature of those factors, this word was given by Mendel. ये टर्म मेंडल ने प्रेस्क्राइब की थी, बाद में जीन नाम दिया गया, and that term gene was given later, which determined the phenotype was not very clear, as these factors, जिनको हम जीन कहते हैं आज की तारीख में, today's scenario, represents the genetic basis of inheritance. Understanding the structure of genetic material and structural basis of genotype and phenotype, ये सभी टर्म्स की अभी इसी चैप्टर में हम बात करेंगे. Conversion became the focus of attention in biology for the next century. The entire body of molecular biology was a consequent development with major contribution from Watson and Crick, Nierenberg, Khorana, that means Hargobind Khorana, a Indian, कॉर्नबर्ग्स, फादर एंड सन है ये आपके, और देन बेंजर, मोनार्ड, ब्रीनर, etc. A parallel problem being tackled was the mechanism of evolution, awareness in the areas of molecular genetics, structural biology, and bioinformatics. That's a new branch and that's a very important, ये बहुत अच्छा नया एरिना डेवलप हुआ है बच्चों, एंड दिस इज टोटली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. तो बायो व्हेन रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, IT sector, that is named as bioinformatics, to put all the data, biological data, into computer that relates to this branch, have enriched our understanding of the molecular basis of evolution. In this unit, the structure and function of DNA, the story and theory of evolution have been examined and explained. तो अभी आपको बताया व्हाट वी आर गोइंग टू डील, क्या हम इस चीज से रिलेट करने वाले हैं. देखिए अब नेक्स्ट, अब आपके सामने आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. दे हैव डन अ मिराकुलस जॉब टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इसीलिए उसे हम वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं.
James Dewey Watson was born in Chicago on 6th April 1928. In 1947, he received BSc degree in zoology. During these years, his interest in bird watching had matured into a serious desire to learn genetics. This became possible when he received a fellowship for graduate study in zoology at Indiana University, Bloomington, where he received his PhD degree in 1950 on a study of the effect of hard X-rays on bacteriophage multiplication. And you all know what is bacteriophage, a virus that infect bacteria. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में, कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं. ही मेट क्रिक एंड डिस्कवर्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर. The first serious effort, their first serious effort was unsatisfactory. Their second effort, based on more experimental evidences and better appreciation of the nucleic acid literature, resulted early in March 1953 in the proposal of the complementary double helical configuration. Francis Henry Compton Crick was born on 8 June 1916 at Northampton, England. He studied physics at University College London and obtained a BSc in 1937. He completed PhD in 1954 on a thesis entitled X-ray diffraction, polypeptides and proteins. A critical influence in Crick's career was his fellowship with J.D. Watson, then a young man of 23, leading in 1953 to the proposal of double helical structure for DNA and the replication scheme. Crick was made on an FRS in 1959. The honors to Watson with Crick include the John Collins Warren Prize of the Massachusetts General Hospital in 1959, the Lasker Award in 1960, and Research Corporation Prize in 1962, and all above the Nobel Prize in 1962. So their work was exemplary because he was two scientists who they was the they was the two scientists they were the two scientists who explore the idea of डीएनए स्ट्रक्चर, और उन्होंने हमारा काम बहुत आसान किया. शुरू करते हैं चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अब इससे रिलेटेड चीजों पर बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट द basic idea of this chapter. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant, not some other animal? और इसके लिए एक बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने टर्म दी थी, एंड दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक. हर कोई अपने जैसे को ही जन्म देता है. अब इसके पीछे है डीएनए. That DNA provides common body design or similar body design. You can say similar body design and subtle changes. We are not exact the copies of our mother and father. We are having the resemblance with our mother and father, but we also have our individuality same.
तो similarities as well as differences, that is the quality of sexual reproduction, and you all know that comes from exchange of genetic material between non-sister chromatids of a homologous chromosome, as we have done in class 11th, meiosis. ये हमने meiosis में पढ़ा कि किस तरीके से हमें पेरेंट्स के थ्रू दोनों पेरेंट से हाफ हाफ सेट मिलता है, 2023 क्रोमोसोम्स हमें दोनों पेरेंट से मिलते हैं, और किस तरीके से उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और हम उनकी संतान होते हुए भी उनकी एग्जैक्ट फोटो स्टेट नहीं होते, उन जैसी रिजेंबल हम अपने मदर से भी रिजेंबलेंस रखते हैं, अपने फादर से भी रिजेंबलेंस रखते हैं, और अपनी इंडिविजुअलिटी भी रखते हैं. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस. तो यही चीज हम समझने वाले हैं और देखने वाले हैं इसमें, इस चैप्टर में इसी के ही सारे पॉइंट आउट्स को समझेंगे. गिवन दैट दे डू आर द ऑफ, इसी तरीके से आप देखें, और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट नॉट एनी अदर प्लांट, क्योंकि उसमें उसका डीएनए, उसके डीएनए की कोडिंग से जो अगला आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास भी सेम तरीके का डीएनए आएगा, बट with slight changes. These are the subtle changes, and these subtle changes, इसीलिए सभी आम की शेप एक जैसी नहीं होती, सभी आम का स्वाद एक जैसा नहीं होता. They have slight difference in their appearance as well as in their taste and in their size. Given that they do are the offsprings identical to their parents, or do they show differences in some of the characteristics? देखिए, अब इसी को आगे फॉर्मुलेट करते हुए चलते हैं, एक बेसिक आइडिया को समझते हैं, देन वी प्रोसीड द नेक्स्ट, तब हम आगे की बात को समझेंगे और चलेंगे. देखिए, सेल, if we talk about a eukaryotic cell, in cell there is a nucleus, and in this nucleus there is a chromatin fiber. Chromatin fiber is made up of segments, and these segments are named as gene. So when many segments many segments or genes join, so there is formation of chromatin fiber. Each chromatin fiber is made up of DNA, that is of 640%, and histone protein, it is of 40%. तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर, जैसे आपने रस्सी के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ बांधते चले गए और पूरी की पूरी एक रस्सी बन गई, तो वो एक रस्सी, एक धागा जो है आपका, वो हो गया क्रोमेटिन, और उस धागे के डिफरेंट टुकड़े जो हो गए वो सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं. और ये हर टुकड़ा या जीन, जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, so that is basically joined to form a chromatin fiber, and each DNA, each gene or chromatin fiber is made up of histone proteins, that is of 60%, and DNA is of 40%. When there is coiling and condensation, coiling and condensation, that leads to a rope like structure, a rope
or rod-like structure, and this is named as chromosome. So this is the chromosome that is having this chromatin fiber. ये सेम उस तरीके से है जैसे कि गर्ल्स के अंदर बालों की चुटिया बनाई जाती है। तो एक बाल आप मान लीजिए एक क्रोमेटिन फाइबर और उनकी गुथने से, उनकी कॉइलिंग से, उनके कंडेंसेशन से जो डेवलप होता है वो रोप लाइक स्ट्रक्चर हो गई। एंड दिस रोप लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग दैट्स अ क्रोमोसोम। दिस इज अपर आर्म, this is lower arm, and that is centromere, and that forms the basis of heredity. तो इस तरीके से इसको हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रॉम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, or you can say sexual reproduction, one copy or 23 chromosomes. If we talk about human, so in human there are 46 chromosomes, and each human get these 46 chromosome. That means 23 pairs, 23 chromosomes from father, from sperms, and 23 chromosomes from mother through egg or ovum. Out of these 23, 22 are autosomes and X or Y sex chromosome. In case of mother, again 22 autosome and X chromosome as sex chromosome. So mother will develop, or mother gives only one type of sex chromosome. सारे एग एक ही तरीके के होते हैं एक्स क्रोमोसोम वाले। चैप्टर 2 में अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो ये आपका स्पर्म्स हैं, उसमें स्पर्म्स 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है। अब क्या होता है, हमें एक क्रोमोसोम मदर से मिल गया, एक क्रोमोसोम फादर से मिल गया, और इस तरीके से पूरा ये एक जोड़ा बन गया। और इस जोड़े को हम कहते हैं अ पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दिस होमोलोगस क्रोमोसोम, what this homologous chromosome is a pair of chromosomes identical in shape, size, structure, and gene position, that is named as locus, or plural is loci.
तो ये वो वन फ्रॉम मदर that is named as maternal and one from father and that is paternal. तो सच 23 पेयर्स, इस तरीके से दोनों मिलकर 23 पेयर्स वी हैव, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। और इस तरीके से हमारे पास ये 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं। अब हर होमोलोगस क्रोमोसोम के पे ऊपर जीन की पोजीशन भी होती है जिसे हम कहते हैं लोकस। और यही जीन का मेन काम क्या होता है, आप जानते ही हैं कि जीन जो है किसी भी प्रोटीन को डेवलप करने का काम करता है। और वो प्रोटीन किसी ना किसी फंक्शन को करता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट को करता है, हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीडेड इन आवर बॉडी दैट विल टेक प्लेस थ्रू these proteins, hormones, enzymes, these are the different forms of proteins। तो इस तरीके से ये एक सेटअप तैयार होता है। अब इसी चीज को देखिए, आपकी बुक क्या कहती है। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब इसमें आप देखें कि गिवन दैट, अब यहां पर एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, तब इसके बाद इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप लोअर क्लासेस में और आपने इस 12th क्लास में भी शुरुआत तो रिप्रोडक्शन से ही करी है, उस यूनिट में उस पर भी आएंगे हम। तो रिप्रोडक्शन is of two types. There is asexual reproduction and there is sexual reproduction. So asexual reproduction and sexual reproduction, these are the two forms of reproduction। अब A means no, sex means gender, that means male female। इनके अंदर कोई मेल फीमेल नाम का नहीं होता, ओनली सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट। In this sex, that means male and female, so that means two parents। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि जेनेटिक मेकअप is through one parent only। Here we can say genetic makeup from two parents, दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप मिल रहे हैं। तो यहां पर कोई भी पर्टिकुलर जीन्स का मिक्सिंग हो गई, मदर से भी मिल रहा है और फादर से भी मिल रहा है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ। यहां पर मेल फीमेल है ही नहीं। अब जो वेरिएशंस अराइज होते हैं यहां पर, वेरिएशंस अराइज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अराइज इन asexual reproduction is due to small inaccuracies during DNA copying, or inaccuracies during DNA copying, but here large variations arise
ड्यू टू exchange of genetic material between non-sister chromatids of a homologous chromosome। अब आप यहां देख रहे हैं, एक तो पहले ही दो पेरेंट्स के थ्रू अलग अलग जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, उसके बावजूद भी उनके अंदर स्पेशली क्या हो गया, देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट आल्सो टेक्स प्लेस, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और ये होता है आपका पैकाइटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसकी वजह से हमारे अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी मिलती है। वी गॉट आवर इंडिविजुअलिटी, वी गेट आवर इंडिविजुअलिटी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स की रिजेम्बलेंस भी रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनकी फोटोस्टेट कॉपी नहीं होते हैं। तो जब ये ट्विस्टिंग होती है, जब ये आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कुछ हिस्सा मदर क्रोमोसोम का फादर से एक्सचेंज हो जाता है और फादर का कुछ हिस्सा मदर से एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम से, और वो हमें अपनी नई इंडिविजुअलिटी, अपनी एक खास पहचान देता है। कोई भी देखकर, बहुत सी बार आपके साथ हुआ हो, अरे शर्मा जी के लड़के हो क्या, आपको देखकर कोई पहचान गया आपके फादर को, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके फेस पर आपके मॉम, आपके डैड की रिजेम्बलेंस है, और वो रिजेम्बलेंस ही आपको उनके इस बात को साबित करती है कि यू गेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम योर मदर एंड फादर। लेकिन इस एक्सचेंज की वजह से यू आल्सो हैव अवर योर्स इंडिविजुअलिटी, आप अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी भी रखते हैं। सो दैट इज द मैजिक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये पर्टिकुलर वेरिएशन वर्ड बहुत जरूरी है इस वक्त समझना, इसीलिए मैंने आपके सामने इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा। अब हम बुक क्या कहती है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, यही चीजें बुक भी कह रही है, बुक ने कुछ अदर नहीं कहना है। गिवन दैट दे आर ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब यहां पर ये आइडेंटिकल वर्ड जो यूज हुआ है, इसको समझते हैं कि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर, as well as their parents morphologically and genetically। दोनों तरीके से, एक्सटर्नल बेसिस पर भी और जेनेटिक बेसिस पर भी, लेकिन यहां पर सेम आएगा, नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर होते हैं हम, हूबहू कॉपी नहीं होते। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्लोन्स। या आपने चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में और एनिमल्स में पढ़ा है कि उनको हम नाम क्लोन्स देते हैं, लेकिन यहां पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वी आर सिमिलैरिटी, वी हैव द सिमिलैरिटी, दैट मीन्स वी का मतलब यहां पर
Offsprings produced through sexual reproduction have similarity with their mother and father, but not the exact copies. They have the differences also. तो इसी यही मैजिक है और ये बड़ा खास बनाता है, और ये सारी चीजें मियोसिस के टाइम पर डेवलप होती हैं। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, समझते हैं हम इस बेसिस को, व्हाट दे ट्राइंग टू से। देखिए जी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट? तो अब यहां पर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी कब होती है? जब हम ट्विंस की बात करते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। और ट्विंस भी ऐसे भी होते हैं जो नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, ये आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, उसको भी हम लेंगे, बात करेंगे उस पर भी। दीज and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology that names at genetics. तो बेसिकली जेनेटिक्स है क्या? तो यहां पर हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं पहले। तो बात करते हैं पहले इनहेरिटेंस। सो बेसिकली व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance is the transfer of characters from one generation to other। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ करेक्टर्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द सेम, बट द प्रोसेस आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ characters from one generation to other। देन हम बात करें नेक्स्ट जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज द branch of biology that deals how characters are transferred from one generation to next, from one generation to next, and factors that affect this transmission। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एंड मेंडल is named as the is known as the father of genetics। अब यही चीज यहां पर इन्होंने दी है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to offspring। Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny and is the basis of heredity। तो inheritance और heredity is not द डिफरेंट टर्म्स, एक ही टर्म, जैसे सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से। एंड वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट, कि कितने बेसिस पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट से डिफरेंशिएट करते हैं, कितने लेवल पर। तो वो सारी चीजें हम इस बेसिस पर समझते हैं। सो आई एम शेयरिंग द QR कोड फॉर दैट। इसको आप स्कैन करें, स्कैन करने के बाद इसको फ्यूचर नोट्स बनाएं, इनसे प्रिजर्व रखें, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन बोथ कमिंग बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन द नीट। आपको नीट के लिए भी बड़ा फायदे देंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, सब बेकार की बात है कि एक्स्ट्रा आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, सब कुछ एनसीईआरटी बुक से ही आता है, लेकिन उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी किसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ऑल आर कमिंग थ्रू दिस बुक ओनली।
So you have to indulge yourself more focusedly towards these things. So that is the QR code. I think that is enough time to deal with. इसी तरीके से मैं आपके साथ दूसरा जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसका भी QR कोड शेयर कर देता हूं ताकि आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकें. So I am sharing the QR code of this also. So that is योर फ्यूचर नोट्स. जितना आप लिखेंगे, लिख लिख कर करेंगे, उतना ही आपके लिए एक बेहतर सिनेरियो बनेगा, एक आगे के लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनेंगी जिनको आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स की बड़ी वैल्यू है. इफ यू डील विद द नोट्स केयरफुली, दैट विल हेल्प यू अलॉट. आपको बहुत फायदा देंगे, वो बहुत आपका हेल्प करेंगे. I think this is enough time to deal with this QR code. Let's move to next. आगे चलते हैं, अब इसके और पॉइंट्स को समझते हैं, फोकस करते हैं उसके ऊपर. देखिए जी, अब ह्यूमंस न्यू from as early as 8000 to 1000 BC. BC means before Christ, that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction, as I told you. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characteristics. हमने अपने बेसिस पर उस टाइम समझा कि खाने के लिए चीजें क्या हैं, किन्हें हम सीधा खा सकते हैं रॉ, किन्हें हम पकाकर खाते हैं. तो वो सारी चीजें हमने धीरे धीरे सीखनी शुरू करी और उनके बेसिस पर हमने अलग अलग वैरायटीज उनकी बनानी शुरू करी अपने हिसाब से, जो आज की तारीख में. इसीलिए वी हैव मोर देन 1000 वैरायटी ऑफ राइस. सो देर आर मैनी अलग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड मोर देन 50,000 वैरायटी ऑफ राइस. तो इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीजें अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में डेवलप किए हैं. फॉर एग्जांपल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन हमने घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां और इन्हें सबको पालना शुरू करा, तो उनकी एक अलग ही ब्रीड डेवलप हो गई. एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज देखिए, हैव बीन वेल नोन इंडियन ब्रीड साहिवाल काउज इन पंजाब. We must, however, recognize that though our ancestors know about the inheritance of characters and variation, but they had very little idea about the scientific basis of phenomenon. कि भाई हम कोई भी व्यक्ति नॉर्मल तौर पर तो यही बता सकता है, आप बहुत बार होता है बिल्कुल गुस्से में तो अपने बाप पर गया है, नाक पर रखा रहता है. ऐसी चीजें आप घर में बहुत सुनते होंगे. अपनी बहुत सारी क्वालिटीज के लिए मम्मी को जोड़ा जाता है, बहुत सारी क्वालिटीज के लिए फादर को जोड़ा जाता है. तो हर जनरल व्यक्ति को भी एक आइडिया है कि बच्चों में अपने माँ बाप के गुण, अपने माँ बाप के करेक्टरिस्टिक्स पहुंचते हैं. लेकिन व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज करेक्टर्स, दीज फिनोमिनन, वी आर नाउ गोइंग टू डेवलप दिस एज ए अप्रोच. अब इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे और समझेंगे. देखिए, it was during mid 19th century that headway was made in understanding of inheritance. यहां से इनहेरिटेंस की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत करने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है ग्रेगर जॉन मेंडल. सो इन साहब ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए. देखिए, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है. मेंडल ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दो चीजें बताई. फर्स्ट इज इमास्कुलेशन. भले ही उन्होंने ये नाम नहीं दिया हो, लेकिन एंथर को कट करना, इमास्कुलेशन. एंड दूसरा आपका बैगिंग, उसको डस्ट करके. ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, हाइब्रिडाइजेशन जिसे हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना, इसकी शुरुआत एक्चुअली उसका एक आइडिया किसने दिया था? मेंडल ने दिया था ऑन गार्डन पी, दैट इज पाइसम सेटाइवम. गार्डन पी और पाइसम सेटाइवम फॉर 7 years. 7 साल की घनघोर तपस्या करी, कठोर तपस्या की इन्होंने, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया. तो यहां पर यह भी समझना बच्चों आपको बहुत जरूरी है
कि इमास्कुलेशन से एंथर्स को कट किया एंड ही डस्टेड ओवर व्हाट प्लांट ही डिजायर्ड, जो भी करेक्टरिस्टिक्स वो चाहते थे उसके लिए उन्होंने दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर या सेम प्लांट की स्टिग्मा, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के सेम डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर और या डिफरेंट प्लांट की स्टिग्मा पर डस्ट किया, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक स्पेशल वैरायटी होती है, स्पेशल टाइप होता है गिटोनोगैमी। तो वो सभी तरीके के प्रोसेसेस इस व्यक्ति ने उस समय पर किए। नेक्स्ट, प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic was applied to prove problems in biology। ये बहुत आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द, जिसे कहते हैं व्हाट, मतलब मेंडल की सक्सेस का राज क्या है, व्हाई मेंडल सक्सीडेड इन हिज अप्रोच, अपनी अप्रोच में उन्हें सफलता क्यों मिली। तो उसका पहला रीजन है ये कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने सारे डेटा, व्हाट ही कंडक्टेड एट दैट टाइम, ही पुट ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनको सबको लिखा, जो आपने स्टैटिस्टिकल डेटा 10th क्लास में पढ़ा है कि कैसे लिखते हैं, मीन मोड मीडियन, वो उस तरीके का पूरा डेटा उन्होंने रखा और उसमें मैथमेटिकल लॉजिक भी इस्तेमाल किया, उससे भी प्रूव किया इन्होंने कि व्हाट आई एम डूइंग दैट इज करेक्ट और नॉट। तो उस चीज को भी इन्होंने डील करा। नेक्स्ट, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड लार्ज सैंपलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। ये दूसरा पॉइंट है उनकी सक्सेस का कि उन्होंने लार्ज सैंपल्स इकट्ठे की, मतलब कोई एक दो चीज एक बार दो बार करके नहीं देखा, इन लार्ज अमाउंट ही गेट द सैंपलिंग साइज टू चेक वेदर द डिजायर करेक्टर्स आर फॉरवर्डेड फ्रॉम वन जनरेशन और नॉट फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट। उन्होंने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखा और ये उनका दूसरा सक्सेस का राज था। तीसरा, आल्सो the confirmation of his inference from experiment on successive generation of his test plants proved that this result pointed to a general rules of inheritance rather than being unsustained idea। So this is the third point for his success। देखिए जी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके आंसर को हम उसकी इक्वेशन में वापस रखकर देखते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने आंसर ऑब्टेन किया है इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसी तरीके से ऑफिस स्प्रिंग्स के बेसिस पर टेस्ट क्रॉस किए मेंडल ने, ये तय करने के लिए कि ये उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं या नहीं है, ऑफिस स्प्रिंग्स उन्हीं पेरेंट्स से रिलेट कर रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज नेम्ड एज टेस्ट क्रॉस, जिसको भी हम आगे समझेंगे हम कि व्हाट इज बेसिकली द टेस्ट क्रॉस। तो इस तरीके से ये तीन मेंडल के वो पर्टिकुलर स्पेशलिटीज हैं जिन्होंने मेंडल की सक्सेस को चार चांद लगाए। बहुत मेहनत से इन सारे अलग अलग बेसिस को उन्होंने कंप्लीट किया। इसके अलावा अब एक और बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, पी प्लांट में क्या खासियत थी। देखिए भाई, पहली खासियत तो यह है शॉर्ट लाइफ स्पान, बड़ा छोटा लाइफ स्पान है इसका। दूसरी खासियत है कि आपका, दूसरी बात करें हम तो सेल्फ और क्रॉस दोनों तरीके के पॉलिनेशन आसानी से किए जा सकते हैं, दैट इज द सेकंड वन। इस क्वेश्चन की सपोर्ट में आप इस सेकंड को लिख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इस तरीके से हो जाएगा कि आपका लाइफ स्पान शॉर्ट हो गया और
ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो करेक्टर्स हैं वो लगभग 4 से 6 जनरेशन तक एज इट इज उसे फॉलो हो जाते हैं आसानी से। तो इसका थोड़ा सा उन्हें और फायदा मिला। और दैट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक ये पॉइंट हो गया। और पांचवा, देयर आर डिफरेंट 7 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जिन्हें आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके ऊपर भी अभी बात करेंगे। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। लेट्स हैव दिस क्यूआर कोड। पहले इस क्यूआर कोड को शेयर कर देता हूं आपको, ताकि आप आसानी से इन सभी पॉइंट्स को, क्योंकि एक बड़ा अच्छा ये एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी हमने मेंडल के, चाहे ये हमने वाई मेंडल चूज पी प्लांट, इसके बारे में भी, तो देर इज किस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस। अब बात करते हैं, देखिए कि ये 7 अलग अलग फीचर्स हैं क्या। देखिए मेंडल ने करेक्टर्स इसलिए पी प्लांट को चुना था क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट करेक्टर्स हैं। एक तो सीड शेप का है कि सीड पूरी तरीके से गोल है जैसे मटर में होता है। और मटरा आपने देखा होता है तो होगा, तो उसमें गड्ढे गड्ढे पड़े हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिंकल्ड। इसी तरीके से सीड कलर येलो और ग्रीन। इसी तरीके से फ्लावर कलर आपका वॉयलेट और वाइट। इसी तरीके से पॉड शेप, मटर हम फली से छील कर निकालते हैं, तो पॉड, पॉड मतलब फली बिल्कुल स्ट्रेट होती है जैसे कि आप देख रहे हैं, या उसके अंदर गड्ढे गड्ढे पड़े हुए होते हैं, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल को हम इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं। इसको हम, दैट इज आल्सो नेम्ड एज इन्फ्लेटेड। तो पॉड तो हो गया फली, ठीक है। और फुल को हम इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पॉड कलर। पॉड कलर में ग्रीन और येलो। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन एक्सिस पर एक सिंगल फ्लावर, सो दैट इज एक्सियल, एक्सिस से बना है। और लेटरल साइड पर भी है, सो दैट इज नेम्ड एज टर्मिनल। तो इस तरीके से एक्सियल और टर्मिनल। सो ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूं कि फली कहते हैं, और ये इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है। फुल और इन्फ्लेटेड दोनों ही बोला जाता है इसको, तो ये भी आप अपने पास सेव रखें, इसको स्कैन करें ताकि फ्यूचर यूज में आप इसको नोट्स बना सकें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज, आगे की बात करते हैं अब। तो और उसके बाद फ्लावर पोजीशन के बाद स्टेम हाइट यू कैन सी के वॉल प्लांट और डॉट प्लांट, तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चुना, हमने ये समझा। मेंडल के सक्सेस का क्या राज था, हमने ये समझा। वेरिएशंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है, लाइक बिगेट्स लाइक क्या होता है, और किस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम का एसोसिएशन है। सो वी हैव टेकन द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर टुडे। इस क्लास में हमने इस पर्टिकुलर बेसिक आइडिया को समझा। अब नेक्स्ट में हम अनादर टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपको डोमिनेंट, रिसेसिव, करेक्टर्स और आपका ट्रेट्स क्या होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होता है, वी सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास में इतना ही। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ध्यान से एक एक चीज को लिख लिख कर समझें। जो भी समझ में नहीं आए, आप मेंटोर जी के वेबसाइट पर 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप अपने डाउट सेशन में भी आप रेज कर सकते हैं क्वेरीज। तो मेंटोर आपके साथ जुड़कर आपके इन क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, मजा लेते रहिए, बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए, और वीजे के साथ यूं ही बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए।